Hello everyone. Today we are going to start our chapter 12, that is price determination. Price determination means, as we know, that we have to determine the price of a particular product, and to determine the price we just have to see the demand and supply. Means if you want to determine, means there are number of factors by which we can determine the price of the product, but here we are going to discuss the determination of price with respect to demand and supply, that is market forces. Means how we can determine the price of a product according to the demand and supply, right? So first of all we have to understand the meaning of market equilibrium, that what is market equilibrium means. मार्केट आपका इक्विलिब्रियम में कब होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी. इट मीन्स दैट मान लीजिए कि इन अ मार्केट देर इज़ अ डिमांड ऑफ, और इन योर हाउस देर इज़ अ डिमांड ऑफ 10 एप्पल्स, and you are fulfilling the demand of 10 apples by supplying 10 apples in your family, then we can say that you or your family is in equilibrium, because your family and you are able to fulfill the requirement according to the demand. So we can say that where the demand and supply are equal, that particular situation, that particular point is known as market equilibrium, right? मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पर द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट अ प्राइस, उस प्राइस पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम होता है एट विच द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई. जब उसकी डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाती है, देन वी कैन से दैट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, लाइक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. एज इन थ्योरी ऑफ सप्लाई, theory of supply chapter, we have studied that there is a positive relationship between price and supply. It means that when the price increases, supply also increases. When the price decreases, supply also decreases, right? So here the theory of supply will be considered. Second is negative relationship between price and demand. There is a negative relationship between price and demand, means when the price increases, the demand decreases. When the price decreases, the demand increases. So we can say that law of demand is also there in the price determination. Next is price is determined at a level at which the quantity supplied for a good is equal to quantity supply. Quantity demanded is equal to, this is quantity demand for a good is equal to supply. आपका प्राइस हम कब डिटरमाइन कर सकते हैं? जब आपका, देखिए ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है आपका डिमांड कर्व, ये दोनों एक पॉइंट पर मीट आउट कर रहे हैं. व्हाट डज इट मीन? कि यहाँ ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, दैट सिचुएशन इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट? इसको हम थोड़ा सा और शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं. शेड्यूल है आपका प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? प्राइस हुआ 3, then 4, then 5. प्राइस इज इंक्रीजिंग and according to law of demand, first of all we will consider law of demand. when the price increases, the demand decreases. जब किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड उसकी रिड्यूस होती है. तो देखिए प्राइस जब 3 था तो डिमांड 800 थी. when the price increases, the demand remains 500. it reduced from 800 to 500. फिर आफ्टर दैट प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस फिर से बढ़ा एंड नाउ इट इज़ 5, फ्रॉम 4 to 5. तो हमारी डिमांड क्या हो गई? और ज़्यादा कम हो गई, 200 हो गई, राइट? अब हम बात करते हैं सप्लाई की. सप्लाई एंड प्राइस हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मीन्स व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, एज वी हैव स्टडीड इन थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर ऑल्सो. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल वाई इज इट सो. 3 प्राइस है तो सप्लाई कितना है? 200 है. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 4, द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 500. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5, दैन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 500 to 800, राइट? तो हमें ये तो इतना समझ में आ गया. अब हम एक देखने वाली चीज़ पहले ही हम देख सकते हैं कि जब आपका प्राइस 4 है तो डिमांड और सप्लाई यहाँ पर क्या हो रही है? इक्वल हो रही है. तो ये हम ये कह सकते हैं, इफ़ वी डिटरमाइन ₹4 फॉर अ कमोडिटी, दैन द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, then the demand and supply will be equal, right?
इसको हम डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए हमने डायग्राम बनाया यहाँ पर, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर हमने प्राइस लिखा 3 4 5, यहाँ पर हमने डिमांड लिखी 200 500 एंड 800, राइट। ये आपने देखिए 4, अगर हम प्राइस कितना रखेंगे 4, हमने 4 प्राइस रखा तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर था, 500 था, ठीक है। ये देखिए आपका जो सप्लाई है ये सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व 4, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द मार्केट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन द प्राइस 4, then we can say that the demand and supply will be equal, then we can say that the market is in equilibrium। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट कैसा है, इक्विलिब्रियम पर है आपका, ठीक है। ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन होता है दिस वन, ये होता है हमारा एक्सेस डिमांड। ये देखिए यहाँ पर पहले हम शो करते हैं 800 डिमांड एंड सप्लाई इज़ 200, यानी कि डिमांड ज़्यादा है किससे, सप्लाई से। व्हेन डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, राइट। सेकंड सिचुएशन में डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई। थर्ड सिचुएशन में डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई, डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई, राइट। तो ये सिचुएशंस हैं हमारी। अब हम ये देखेंगे ये जो पोजीशन होती है ये हमारी कहलाती है एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। एंड जो ये हमारी ऊपर वाली पोजीशन है ये एरिया हमारा कहलाता है एक्सेस डिमांड का। ऐसा क्यों कहला रहे हैं हम एक्सेस डिमांड है यहाँ पर, क्योंकि व्हेन प्राइसेस आर 3 देन डिमांड इज़ 800। डिमांड कितनी थी, 800 थी। फिर प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई, 500 हो गई, ठीक है। जब 4 हुआ तो डिमांड क्या हो गई, तो सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पर थी, यहाँ पर, इसलिए दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। और सबसे ज़्यादा सप्लाई कहाँ पर है, एट ₹5 पर सबसे ज़्यादा सप्लाई है। तो इसको, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ एक्सेस सप्लाई, राइट। दिस इज़ एक्सेस डिमांड एंड दिस इज़ एक्सेस सप्लाई। इज इट क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है, दिस इज़ आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई है, मीन्स अगर ₹5 का एक्सेस सप्लाई है और हमें इसको इक्विलिब्रियम लेवल पर लाना है, देन वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। हमें प्राइस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए 5 से 4 लाएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम लेवल पर आएगा, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। तो प्राइस आपका 5 है, यहाँ एक्सेस सप्लाई है, ठीक है। हमें क्या करना है, वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। इफ़ demand is less than supply, means supply is more than demand, then what a market will have to do, the market should reduce the prices so that जैसे ही प्राइस रिड्यूस होंगे आपके, जैसे ही प्राइस कम होंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होकर कहाँ आ जाएगी, वो इस पॉइंट पर आ जाएगी। ऐसे ही आपकी डिमांड एक्सेस है, यानी कि आपकी डिमांड थ्री प्राइस पर 800 है। अब हमें इक्विलिब्रियम लाने पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड का तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, देन वी हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस। तो हम मार्केट वाले क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे। जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो लोगों की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और हम फिर से कहाँ चलते चले जाएंगे, डिमांड डिक्रीज़ होगी तो हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना। ऊपर जाकर फिर हम इस पॉइंट पर मीट आउट करेंगे, दैट इज़ एट ₹4, और हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम and how we determine the price in market, right। एक बार फिर से बता रही हूँ, दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, और ये है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो मार्केट में प्राइसेस को कम करना चाहिए, और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो आपको प्राइसेस को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस डिमांड को इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए जैसे ही आप प्राइस बढ़ाएंगे तुरंत ही डिमांड कम हो जाएगी, और कम होगी तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैच करेगी। एंड व्हेन देयर इज़ अ एक्सेस सप्लाई, व्हेन देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, देन व्हाट अ मार्केट विल हैव टू डू, हाउ द मार्केट विल डिटरमाइन द प्राइस, in this situation the market should reduce the prices from 5 to 4, and definitely we come in the equilibrium level. So I think this is sufficient for today, and we will cover more topics in the next videos.